Hello and welcome back, dear students. Welcome to this new video on PYQ series. In this particular video, we are going to discuss about the previous year questions of semiconductors and semiconductor devices. नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिक गेट्स के जो भी एंटायर अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो जेईई मेंस में हो, चाहे वो नीट में हो, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. In today's video, I'll be discussing some NEET PYQs and JEE Mains PYQ, which is very important for the NEET 2026. By these questions, you will get a rough idea how the questions are asked, and you will get an understanding, like it's a quick revision type for the same questions. So now let's move ahead. Let's solve the very first question. The very first question is, you have to choose only false statement from the following. This is the one of the important point which students should remember. You are supposed to read the question very properly, right? Sometimes you are being given pick out the true statement and we pick out the false statement. So herein we are not supposed to try the true the correct one. We are supposed to choose that statement which is false. So if we will solve this question, uh, we have to choose only the false statement, right? So we do have the very first part, that is the in conductors the valence and the conduction bands overlap. That's quite obvious. If on the base of band theory, we know this is what we call as the valence band and this is what we call as the conduction band. And as per the band theory, there is forbidden energy gap which we call as the forbidden energy gap, that is zero. In conductors, forbidden energy gap zero hoti hai, so they overlap. So it is true, it's correct, but we have to pick the false statement. Now the second thing is substance with energy gap of order 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंसुलेटर. देखिए, अगर आप एनसीईआरटी का डेटा देख लेंगे, अगर हमारे पास फॉरबिडन एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बट ग्रेटर देन 0 है, दे आर व्हाट वी कॉल एज द सेमीकंडक्टर्स. बट अगर हमारा डेल्टा ईजी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आते हैं. तो यही कॉन्सेप्ट वो है ग्रेफाइट डायमंड वाला. इवन दो कार्बन के पास इतना ही है, उसके आइसोटोप्स के पास ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है. दैट्स व्हाई वी कैटेगराइज दैट एज इंसुलेटर. सो इफ greater than 3 electron volt delta EG यानी forbidden energy gap होती है, they are insulators, so this is also correct. Now the resistivity of the semiconductors increase with increase of the temperature. Here is the point which we need to check. हमें पता है फॉर्मूला होता है R is equal to R naught 1 plus alpha multiplied by T, or you can say delta T. Here this alpha, you know, this alpha is positive for metals. Like, what does that mean? This means if you increase the temperature, R is going to increase. But for semiconductors, alpha is negative for semiconductors. For semiconductors, alpha is negative. What does that mean? That reflects, suppose if you increase the temperature, the R is going to decrease. So that is, herein it's false. So we can say for the given question, as per the given condition, this is correct, right? So यहाँ पे the conductivity of the ये तो उल्टा हो गया इसका, right? वो तो increase, ये तो correct है. This one is false. Do remember, अगर आपके पास कभी भी ऐसा question आ जाए कि wherein you have to compare resistance resistivity for the semiconductors, over here do remember, अगर temperature increase हो जाए, resistance of semiconductors decreases. Over here they were supposed to write the resistance, but they have specifically written resistivity, so we can go with this option. Now moving to the next question. The next question is, carbon, silicon, germanium atoms have 4 valence electrons each. Their valence and conduction bands are separated by energy band gap, right? That is represented by Eg. Okay, which one of the following is relationship is true? देखिए, important है कि जब हम group 14 की elements की बात करते हैं, we do have carbon, we do have silicon, we do have germanium, we do have the atoms like elements following these. So हमें पता है कि ये वाला जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है. Why I didn't talk the elements lying below the germanium? Because they are categorized as metals and they are considered as conductors. साइज इंक्रीज हो जाता है, बट जो डेल्टा ईजी है यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो कम कम हो जाती है. दैट्स व्हाई दे आर मेटल्स, दैट्स व्हाई दे आर कंडक्टर्स. सो जब नीचे जाते हैं तो डेल्टा ईजी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. तो सॉरी घट जाता है, साइज बढ़ता है तो डेल्टा ईजी घट जाता है. सो व्हाट डज दैट रिफ्लेक्ट्स? दैट रिफ्लेक्ट्स
सपोज अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन के पास डेल्टा Eg ऑफ कार्बन इज सबसे ज्यादा, it is greater than the silicon, that is greater than the germanium. So we have to check कार्बन का पहला ही है correct, right? Which of the following is relationship is true? So this one is correct, क्योंकि कार्बन का जो एनर्जी बैंड गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है, वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन। तो यहाँ पे तो ये तो गलत हो गया, राइट? ये तो इसी कॉन्सेप्ट से बराबर तो होंगे नहीं, राइट? तो ये तो वही वाली बात होगी, ये भी गलत है। तो सो द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दिस वन। नाउ वी डू हैव दिस इन सेमीकंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट समझना है आपको, जब भी हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर्स एंड इफ इट इज मेंशन्ड एट रूम टेम्परेचर, at room temperature semiconductors behave like conductors, याद रखना। and we do have this as valence band and we do have this conduction band। अगर हम सेमीकंडक्टर की रूम टेम्परेचर की बात करें, at valence band in conduction band there will be electrons होने की वजह से that's why it is going to behave as conductor, right? so this means जो valence band है ना, वो पहला ऑप्शन क्या है, valence band is partially empty and conduction band is partially filled। इसका मतलब ये partial। next option is the valence band is completely filled and the conduction band is partially filled। the valence band is completely filled, नहीं तो इन्होंने तो जंप किया होगा इलेक्ट्रॉन्स ने। the conduction band is completely empty, ये तो करेक्ट नहीं होगा, ये भी करेक्ट नहीं होगा। now here is the thing which this is what we call as the elimination method। now अब हमें यहाँ पे चेक करना है, the valence band is completely filled and conduction band is partially filled। अब ये completely filled और ये partially, यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट? एंड उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उन इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने रूम टेम्परेचर पे दे दिया, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में है, वो कंडक्शन बैंड में आए कहां से, वो जाएंगे वैलेंस बैंड से। तो हियर इन दिस वैलेंस बैंड विल बी पार्शियली फिल्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहीं से वहां जंप करेंगे। क्योंकि अगर आप जनरली देखेंगे सेमीकंडक्टर्स का जो कंडक्शन बैंड होता है जीरो टेम्परेचर पे, सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज परफेक्ट इंसुलेटर जीरो केल्विन पे। तो इसका मतलब उनका कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। जो ही मैंने रूम टेम्परेचर दिया, कंडक्शन बैंड के पास आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, कहां से, वैलेंस बैंड से। तो वैलेंस बैंड भी पार्शियली फिल हो जाएगा और कंडक्शन बैंड के पास भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन की तरफ देखेंगे, द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, अगर वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है तो कंडक्शन बैंड में आए कहां से इलेक्ट्रॉन्स, आएंगे तो वो कहां से, व्हाट वी कॉल एज द वैलेंस बैंड से। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, ये तो रॉन्ग है। तो आए कहां से, इन कंडक्शन बैंड द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम वैलेंस बैंड, राइट? सो दैट मीन्स कि पहले पार्शियली कौन सा आधा हुआ होगा, कंडक्शन वैलेंस बैंड, इसी से इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे कहां पे, कंडक्शन बैंड में। सो दिस इज द करेक्ट, क्योंकि ये भी पार्शियली फिल्ड होगा, वो भी पार्शियली फिल्ड होगा, right? Now we do have the carbon and silicon both have same lattice structure, correct, having 4 bonding electrons in each। however carbon is insulator whereas silicon is intrinsic semiconductor, fine। तो अगर यहाँ पे डेल्टा Eg का कॉन्सेप्ट होता तो हम ये डायरेक्टली बोल देते कि डेल्टा Eg ऑफ कार्बन इज मोर देन दैट ऑफ सिलिकॉन, राइट? बट यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आर नॉट लाइक दैट वे। in case of carbon the valence band is not completely filled at absolute zero temperature। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे तो वो परफेक्टली इंसुलेटर होता है, राइट? तो इस कंडीशन में तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इस कंडीशन में एब्सोल्यूट जीरो पे सिलिकॉन क्या होगा, सिलिकॉन हमारा इंसुलेटर नहीं होगा या वो सेमीकंडक्टर होगा। सो दिस इज नॉट करेक्ट। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, इन केस ऑफ कार्बन द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड इवन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, राइट? द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ कार्बन लाई इन द सेकंड ऑर्बिट whereas in case of silicon they lie in the third, right? see देखिए, अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं कार्बन का। सो एज पर अबाउट प्रिंसिपल 1s2 2s2 2p4 6 है ना, 2p2, राइट, 2p2। और सिलिकॉन की बात करें, सो दैट इज 1s2 14 है इसका, 2s2 2p6 3s2 3p4, राइट? 10 3p2 सॉरी 14 है। तो अगर हम बात करें दिस इज n इक्वल टू 1,
this is n equal to 2, so this is n equal to 1 and this is n equal to 2 and this is n equal to 3. so इसमें जो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये किस में लाई कर रहे हैं? थर्ड ऑर्बिट में, राइट? यही तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप जनरल लिखेंगे बोहर ब्यूरी स्कीम 284, तो ये 4 किस में लाई कर रहे हैं? n इक्वल 3 में। इसमें जो 4 जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग में, कार्बन वाले में, टेट्रावैलेंट में, वैलेंसी में, तो वो कौन से ऑर्बिट में? सेकंड ऑर्बिट में। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लाइन द कार्बन थर्ड, ये तो गलत हो गया, राइट? ये तो सही नहीं है हमारा, राइट? नाउ वी डू हैव द वेरी फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पे पहली चीज ये चेक करें सिलिकॉन कौन सा है। सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर। और अगर हम एब्सोल्यूट जीरो की बात करें, दैट इज 0 केल्विन, दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो इस पे जो सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड होगा वो होगा कंप्लीटली एम्प्टी। जब वो कंप्लीटली एम्प्टी होगा, इसका मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड। तो जब ऑल इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होगा, फ्री कौन सा है? कोई भी नहीं। दैट मींस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज, डू रिमेंबर दिस, perfect insulator. They behave as a perfect insulator. Non metal तो है नहीं, metal none of these, तो कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। Fine. So now let's move to the next question. For a p type, which of the following statement is true? Like हम जानते हैं हमारे पास intrinsic होता है pure, जिसमें number of electrons, number of holes, majority, minority बराबर होते हैं। But the moment you do doping, dopant of trivalent की कर दे या pentavalent की कर दे, जैसे इंडियम है ट्राइवेलेंट, या पेंटावेलेंट जैसे एंटीमनी है, बिस्मथ है, फॉस्फोरस है, इसकी इम्प्योरिटी कर देंगे टेट्रावेलेंट में, तो वो क्या बन जाएगा? बन जाता हमारा एन टाइप। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है, राइट? पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इलेक्ट्रॉन पी टाइप में याद रखना, मेजॉरिटी जो ज्यादा होंगे वो होंगे होल्स। होल्स होते हैं मेजॉरिटी, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी। इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर आर माइनॉरिटी, राइट? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे यहाँ पे वो माइनॉरिटी आते हैं। और एन टाइप में इसका उल्टा, एन टाइप में इसका उल्टा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर द डोपेंट। देखिए पी टाइप क्या होता है, पहली चीज समझना है, हम जानते ही भी होंगे। पी टाइप इज जब आप 4 वाले में 3 वाला डोपेंट ऐड करेंगे। लाइक जब आप टेट्रा में ट्राईवैलेंट की इंप्योरिटी को ऐड करेंगे, और जब आप ट्राईवैलेंट की इंप्योरिटी ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉन्स तो मेजॉरिटी होंगे नहीं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी एंड ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज आर द डोपेंट्स, राइट? वही बात अगर एन टाइप होता है, एन टाइप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी विल बी द डोपेंट। डोपेंट होता है जो हम ऐड करते हैं। होल्स आर द मेजॉरिटी एंड सॉरी, नो, यहाँ पे p टाइप है तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज आल्सो रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मेजॉरिटी, हमसे p टाइप पूछा है। होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड ट्राईवैलेंट्स आर द इंप्योरिटी, राइट? ये गलत है। इलेक्ट्रॉन्स तो मेजॉरिटी किस में होते हैं? एन टाइप। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एन टाइप सेम कॉन्टेक्स्ट, एन टाइप में कौन सी चीजें ज्यादा होंगी? क्वाइट ऑब्वियस, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होगी, इंप्योरिटी क्या होगी? पेंटावैलेंट। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स will be majority चार्ज कैरियर्स, और इम्प्योरिटी कौन सी होगी? वो होगी हमारी पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट चेक करना है हमें। वही अभी हमने देखा पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप में मेजॉरिटी, अच्छा इसमें याद रखना मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी इसमें स्टिल प्रेजेंट है। माइनॉरिटी तो इसमें होल्स है, ठीक है ना? ये आपने पीएन जंक्शन जब डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन पढ़ते हैं वहां तो हम ये चीज डिस्कस करते हैं। पी टाइप में होल्स और मेजॉरिटी, होल्स मेजॉरिटी, और इम्प्योरिटी कौन सी है? ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। तो होल्स और द माइनॉरिटी, नहीं ये तो गलत है, सॉरी, एन टाइप है। होल्स और द माइनॉरिटी एंड पेंटावैलेंट आर द डोपेंट, राइट? दिस इज करेक्ट, क्योंकि हमारे पास होल्स जो है वो माइनॉरिटी है इसमें,
और पेंटावैलेंट इज द इम्प्योरिटी, राइट। अब ये यहाँ पे देखना, होल्स आर द मेजॉरिटी, होल्स किस में मेजॉरिटी होते हैं, पी टाइप में, और इम्प्योरिटी कौन सी है, ट्राइवेलेंट। अगर ये एन टाइप पी टाइप होता तब ये सही होता। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी एंड ट्राइवेलेंट, देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो मेजॉरिटी है, दैट इज करेक्ट टिल नाउ, बट यहाँ पे इम्प्योरिटी जो ऐड हुई है ना डोपेंट की, वो ट्राइवेलेंट, अगर यहाँ पे ये होता पेंटावेलेंट तब सही होता। अब यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, तो ये पोर्शन तो पहले ही गलत है, बट ये वाला पोर्शन जो है ना वो सही है, तो ओवरऑल ऑप्शन तो गलत हो गया। तो सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो इसमें है एन टाइप में, कि माइनॉरिटी तो होल्स है और पेंटावेलेंट्स आर द इम्प्योरिटी, right? Now moving to the next question, if the small amount of antimony is added to the germanium, आप जानते हो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, जर्मेनियम पेंटावैल ट्राइवैलेंट सॉरी टेट्रावैलेंट है, इसमें एंटीमनी ऐड कर दो, एंटीमनी कौन सा है, पेंटावैलेंट, तो क्वाइट ऑब्वियसली जब आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे वो क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन, था एन टाइप बनेगा तो एन टाइप में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, पी टाइप तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। एंटी मनी जो है यहाँ पे डोनर है रादर देन एक्सेप्टर, रेजिस्टेंस तो इंक्रीज नहीं हो जाएगी, रेजिस्टेंस तो घट जाएगी, क्योंकि फ्री कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज सेइंग प्योर सिलिकॉन एट 500, अच्छा अगर ये प्योर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स बराबर होंगे, कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की इतनी है, इट इज 10 to the power 6। डोपिंग बाय इंडियम, फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, इंडियम जो है, इंडियम, सो आई विल सजेस्ट यू टू रिमेंबर दीज, इंडियम जो है ना वो ट्राइवेलेंट है, इंडियम कौन सा है, वो ट्राइवेलेंट है, ठीक है। द डोप सेमीकंडक्टर इज ऑफ, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर आपने लाइक यू माइट हैव रेड दिस आउट, मैं एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लूं, कि हमारे पास मास एक्शन लॉ है, मास एक्शन लॉ है, मास एक्शन लॉ क्या कहता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स बिफोर एंड आफ्टर वो बराबर होगी। लेट्स से बिफोर डोपिंग एन ई मल्टीप्लाइडेड बाय एन एच, वो एन ई और एन एच को हम बराबर लिखते हैं, लेट मी कॉल दिस एज इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन एन आई, और आफ्टर तो एक ना एक चीज तो बराबर ग्रेटर देन हो ही जाएगी, राइट, एन ई मल्टीप्लाइड बाय एन एच। अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड है, एन ई विल बी ग्रेटर देन, राइट, ये याद रखना, एन ई इज ग्रेटर देन एन एच, कब, अगर हमारी इम्प्योरिटी कौन सी है, पेंटावैलेंट, और एन ई विल बी लेस देन एन एच, अगर हमारी इम्प्योरिटी कौन सी है, वो है हमारे पास ट्राइवेलेंट, ये भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमने इंडियम को ऐड कर दिया, दैट मीन्स हमारा NH बढ़ जाएगा, सो Ne मल्टीप्लाइड बाय NH विल बी इक्वल टू Ne into NH, बट बिफोर डोपिंग Ne NH बराबर होंगे, तो आई विल राइट Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne मल्टीप्लाइड बाय NH। अब अगर हमसे इंडियम ऐड किया हुआ है तो इसका मतलब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, राइट। अगर हमसे पेंटावैलेंट पूछेगा तो हमसे NH पूछेगा, तो मैं Ne को क्या लिख सकता हूं, दैट इज Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन दैट वी हैव, इंडियम हमारे पास ट्राइवेलेंट है, मास एक्शन लॉ लगाने के बाद अगर हम इसको देखें, इंडियम हमारे पास कौन सा है, ट्राइवेलेंट। अब हमें पता है Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne मल्टीप्लाइड बाय NH। द डोप सेमीकंडक्टर, अच्छा द डोप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, क्योंकि होल कंसंट्रेशन इतनी इंक्रीज होगी, Ni कितना इनिशियल कितना था, Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH, Ni कितना है 1.5 टाइम्स 10 to the power 16 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ होल्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं, अप टू 4.5 टाइम्स 10 to the power 12 सॉरी 22। देखिए 1.5 is like you can say it's 15, तो 2.25 divided by 225 divided by 45, so you are going to get something 5 multiplied it by 10 is power 32 10 is power 22, तो वो एक पॉइंट हमने बढ़ा दिया था, तो दैट इज 5 into 10 is power 32 और 22 10, so that will be 5 into 10 is power 9,
तो वी हैव टू चेक Ni जो होगा वो होगा हमारा कौन सा, पहले p टाइप होगा। देखिए यहाँ पे अगर हमारे ऑप्शंस दो दो सेम है राइट, बट ये p टाइप ही बनेगा और हमारी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 5 × 10⁹ मीटर पर क्यूब राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज चार्ज कंसंट्रेशन, जब हमने इसमें क्या है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया। नाउ दिस इज द concept that we discussed over here. Which one of the following statement is false? देखिए false statement कौन सा है, pure semiconductor doped with trivalent impurity gives p type, ये तो करेक्ट है। सो ये तो करेक्ट है अगर आपने उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी। मेजॉरिटी कैरियर्स इन इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप आर होल्स, ये तो रॉन्ग है। एन टाइप में मेजॉरिटी कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये जाएगा। माइनॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप आर इलेक्ट्रॉन्स, ये तो सही है क्योंकि पी टाइप है तो माइनॉरिटी लिखा है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स ही है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीज्ड, ये भी सही है, तो हमें रॉन्ग चेक करना था राइट, फॉल्स वाला स्टेटमेंट वी आर सपोज्ड टू चेक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन द एनर्जी बैंड डायग्राम शोन हियर द ओपन सर्कल्स डिनोट, सॉरी इसमें जो है वो डायग्राम मिसिंग है, डायग्राम कुछ यूं हो था इसमें। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एनर्जी बैंड्स बनाए गए थे और यहाँ पे कुछ सर्कल्स ओपन सर्कल्स थे और फिल्ड सर्कल्स, ये डिपेंड करेगा कि एन टाइप पी टाइप में अगर ओपन सर्कल ज्यादा है, लेट्स से ओपन सर्कल ज्यादा है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग ओपन सर्कल्स एज मोर राइट। ओपन सर्कल्स अगर ज्यादा है, और ओपन सर्कल्स को किस चीज से इन्होंने डिनोट किया है, ओपन सर्कल डिनोट होल, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज पर आवर कंडीशन। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द डायग्राम, तो इसका मतलब नंबर ऑफ होल्स किसमें ज्यादा होते हैं, पी टाइप। लेट्स इसका रिवर्स कर दें तो एन टाइप हो जाएगा राइट। और लिखा हुआ है एनर्जी बैंड डायग्राम मटेरियल, अगर होल्स है और इलेक्ट्रॉन्स है तो क्वाइट ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर होगा, मेटल तो नहीं होगा, ठीक है। नाउ in a p-type semiconductor the majority charge carriers of electrons are majority charge carriers of current are holes। p-type है तो holes, ये तो हम जानते हैं क्योंकि होल जो है वो वर्चुअल चार्ज कैरियर्स होते हैं, what we call as the VCC। now moving to the question this, which of the following when added as an impurity in silicon produces n type। देखिए सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन ये है हमारा, I may say it is tetravalent, और अगर सिलिकॉन में से टेट्रावैलेंट से मुझे एक एन टाइप चाहिए, if I just want an n type semiconductor from this, so I have to add the impurity which is pentavalent। so अगर आप देखेंगे एल्युमिनियम तो ट्राइवैलेंट है, मैग्नीशियम भी, बिस्मथ तो है नहीं, तो फॉस्फोरस, so phosphorus is the pentavalent, so if you add this, so ये भी हमारे नीट के ही एग्जाम में आया हुआ है। now moving to the next question, to obtain a p type germanium क्या है, देखिए कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ये हमारा क्या है टेट्रावैलेंट, आई मे राइट दे आर टेट्रावैलेंट। और सिंपल है, अगर आप टेट्रावैलेंट से p टाइप चाहते हो, व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप पेंटावैलेंट ऐड करेंगे तो वो एन टाइप बन जाएगा। आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, ट्राइवैलेंट, यू हैव टू ऐड ट्राइवैलेंट। तो ट्राइवैलेंट कौन सा है यहाँ पे, आप जानते एंटीमनी फास्फोरस आर्सेनिक, ये तो पेंटावैलेंट है, तो इंडियम राइट। you have to go through this periodic table as well for this particular chapter, और moreover ये आपके न्यूक्लियस और एटम्स में भी काम आएगा। now we do have this when arsenic is added to impurity, ये तो हम जानते हैं p टाइप होगा या n टाइप, पेंटावैलेंट है तो n टाइप, ट्राइवैलेंट है तो p टाइप राइट। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए आई स्किप दिस क्वेश्चन। when n टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड, देखिए हमारे पास n टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका मतलब ऑलरेडी Ne is much greater than number of holes। अब ये क्या बोल रहा है, a number of electron increases while that of holes decrease। ऑलरेडी आपके पास n टाइप है, ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे, अब बॉन्ड्स और ब्रेक होंगे,
तो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज, ये तो गलत है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीज इक्वली, ये भी गलत है, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिमेन्स सेम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। बच्चे क्या सोचते हैं कि जो ही हमने हीट कर दिया तो यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स। तो याद रखना, जहां पे इलेक्ट्रॉन, जहां पे बॉन्ड टूटा वहां पे होल क्रिएट हुआ, 10 बॉन्ड टूटे, 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, 10 होल्स क्रिएट हो जाएंगे। सो इट विल बी सेम। नाउ यू विल बी आस्किंग, तो फिर ये किया किसने ये चीज इज नॉट डन बाय टेम्परेचर, डू रिमेंबर दिस इज डन बाय डोपिंग, दिस इज डन बाय डोपिंग। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, इज नॉट डन बाय द टेम्परेचर, क्योंकि जो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, इट इज डन बाय बोथ डोपिंग एज वेल एज द टेम्परेचर, राइट। सो ये ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे उतना, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे उतने होल्स क्रिएट हो जाएंगे। बट अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना, इट्स नॉट द टेम्परेचर विच कैन डू इट, you have to do doping specifically. It's already n type, that means you have done a specific doping, that's a pentavalent doping. Now the number of electrons are already increased, but you are only subjecting this particular semiconductor to heat. That means the number of bond breakage will be equal to the number of holes generated over here, so we can say the number of electrons and holes remain the same, right? I think this is clear and this is what we are supposed to know. ठीक है, डिक्रीज तो नहीं होगा, राइट। द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, अच्छा इंक्रीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ का बढ़ना इज डिसाइडेड बाय बायसिंग। अगर हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग है, अगर हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग, याद रखना डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज हो जाती है। फॉरवर्ड बायसिंग सपोर्ट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वाला करंट, राइट, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ घट जाएगी। बट अगर हमारे पास रिवर्स बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग, राइट, रिवर्स बायसिंग, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, हमसे इंक्रीज ही पूछा है, सो इट इज रिवर्स बायस, राइट। इसमें तो नहीं होगा, फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज हो जाती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the barrier potential, that's what we call the potential barrier V naught, जो सिलिकॉन के लिए फिक्स होता है, जर्मेनियम के लिए फिक्स होता है, ये तो इस पे भी डिपेंड करता है, डोपिंग पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। आई थिंक ऑल द थ्री ऑप्शंस शुड बी करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अनबायस्ड होल्स डिफ्यूज फ्रॉम P and P रीजन टू N रीजन। देखिए हमारे पास अनबायस्ड है, अनबायस्ड इसका मतलब you have applied battery either of equal potential both sides or you have not applied an external battery. बट अगर ये अनबायस्ड है तो होल्स डिफ्यूज क्यों हो रहा है, बिकॉज देयर इज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप। अगर आप एक वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने फॉरवर्ड बायसिंग से पहले ये चीज डिस्कस करी थी, और ये क्लास में भी हम डिस्कस करते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास पी टाइप है, ये हमारे पास एन टाइप है, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर इज द लेयर जिसमें ओनली इमोबाइल आयंस है। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये डिफ्यूज हो जाएंगे इसमें। क्यों? बिकॉज देयर इज होल कंसंट्रेशन इज हायर इन P देन इन होल कंसंट्रेशन इन N, ठीक है ना। तो द अट्रैक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी, नो, बिकॉज ऑफ द होल कंसंट्रेशन, इट इज द कंसंट्रेशन डिफरेंस, दैट्स व्हाट वी कॉल द डिफ्यूजन करंट, राइट। इन PN junction high potential is at N side and low potential is at P side, right? हाई पोटेंशियल इज एट पी से, तो हम जानते हैं कि पी साइड पे हाई पोटेंशियल होता है, वहां पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब हाई ही होता है, राइट। सपोज अगर आपके पास यहाँ पे दिया है +2 और यहाँ पे दिया है -14 वोल्ट, सो वी विल कैटेगोरिकली से दिस इज हाई पोटेंशियल। ये तो बायसिंग में भी काम आता है, सो दिस इज लो पोटेंशियल। सो दिस मीन्स दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, डिप्लीशन लेयर एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है, इट इज डिवाइड ऑफ, इट इज डिवाइड ऑफ चार्ज कैरियर्स। दैट मीन्स इसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं है। चार्ज कैरियर कौन सा है, क्या इट्स आयन, नो नो, इट्स इलेक्ट्रॉन एंड द होल्स। और जब हम डिप्लीशन लेयर की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर की बात करते हैं, डिप्लीशन लेयर तब बनते हैं जब हम पी टाइप और एन टाइप को साथ में ले आते हैं,
इधर के होल्स इधर डिफ्यूज हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आप जब इधर से होल्स आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं, तो बीच में एक लेयर क्रिएट हो जाती है जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन होता है ना तो होल होता है, उसमें बचता क्या है खाली, दैट इज द इमोबाइल आयंस। चाहे वो एक्सेप्टर और डोनर वाले आयंस है वो इमोबाइल, इमोबाइल इसलिए क्योंकि वो आयंस आगे नहीं पीछे जाते, आयंस डोंट मूव इन देन क्रिस्टल, इट इज द ओनली चार्ज कैरियर्स होल्स और इलेक्ट्रॉन्स विच मूव। सो डिप्लीशन लेयर में क्या चीज होता है, सिर्फ डिप्लीशन लेयर में सिर्फ जो है इमोबाइल आयंस होंगे, राइट, ठीक है ना। डिप्लीशन लेयर में अगर आप देखेंगे, डिप्लीशन लेयर में आप देखेंगे बच्चों को ये डाउट रहता है ये माइनस प्लस क्या है, दीज आर नॉट इलेक्ट्रॉन्स आर होल्स, दीज आर द आयंस, आयंस of acceptor or donor atom, right? So this is what we should know, dear students, ठीक है ना। now moving to the next question, the depletion layer is caused by, ये तो हमें पता है कि डिप्लीशन लेयर का जो फॉर्मेशन वो बनती कैसे, जब डिफ्यूजन होता है, नॉट ड्रिफ्टिंग, राइट। सो इट इज द डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर्स का ही डिफ्यूजन होगा, जैसे होल जाएंगे इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, राइट। सो जब होल्स इधर से इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर से इधर जाएंगे, तो दिस पीस एंड सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द ड्रिफ्टिंग। इन पीएन जंक्शन गैन दे चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, ठीक है। हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है, डायोड में आपने क्या किया, चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। अब अगर हीटिंग की वजह से आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, सो व्हाट डज दैट मीन, अगर हीटिंग हुई, अभी मैंने बोला था हीटिंग की वजह से क्या होगा, बॉन्ड्स ब्रेकेज होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स का सॉरी जितने कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतने ही होल्स भी क्रिएट हो जाएंगे। सो क्या ये सिर्फ रिवर्स रेजिस्टेंस को इफेक्ट करेगा, नहीं, because the number of holes and electrons generated will be equal, affects forward resistance, no, does not affect the resistance, resistance को इफेक्ट करेगा, बट ये रेजिस्टेंस को दोनों सेंस में इफेक्ट करेगा, लाइक इट इफेक्ट्स द ओवरऑल आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। रीजन समझना, क्योंकि जब आप हीट प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ पे होल्स भी क्रिएट हो जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी क्रिएट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे, आपने आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐसे पढ़ा होगा और यहाँ पे ऐसे पढ़ा होगा आईवी, राइट। So this is what we call as a direct current. This direct current is also going to change and this is also going to change what we call as the knee voltage जब यहाँ पे avalanche breakdown हो जाता है, right? So I can say it is better कि हम ये वाला इसमें ध्यान रखें कि ओवरऑल जो IV characteristics है उसको affect करेगा। Now we do have this question. The question is very important कि यहाँ पे हमें बायसिंग को चेक करना है, राइट। तो बायसिंग को चेक करने के लिए फर्स्टली वी आर सपोज्ड टू हैव द वेरी बेसिक आइडिया। बायसिंग का मतलब अगर हमें फॉरवर्ड बायसिंग चेक करनी हो, फॉरवर्ड बायसिंग में जो P होना चाहिए, P शुड बी कनेक्टेड टू व्हाट वी कॉल एज द हाई। हाई का मतलब, हाई जो मैथमेटिकल हाई है, लाइक +2 और -10, +2 इज द हाई, और रिवर्स बायसिंग में जो P है दैट शुड बी कनेक्टेड टू लो। बस दिस इज द सिंपल फंडामेंटल थिंग इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, अगर हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो ऑप्शंस थोड़े से लाइक वी हैव टू चेक इट डायरेक्टली फ्रॉम ओवर हियर। -4 P is connected to -4, N is connected to -3, हाई कौन है, दिस वन इज हाई, दिस वन इज लो, यहाँ पे दिस वन इज हाई, दिस वन इज लो, दिस वन इज हाई, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे हाई एंड दिस वन इज लो, एंड दिस वन इज लो एंड दिस वन इज हाई, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब हम जंक्शन डायोड की बात करते हैं, सो दिस रिप्रेजेंट्स N एंड दिस रिप्रेजेंट्स P। यहाँ पे P इज कनेक्टेड टू लो एंड N इज कनेक्टेड टू हाई, ये तो हो गया हमारा रिवर्स बायस। यहाँ पे दोबारा P इज कनेक्टेड टू लो, N इज कनेक्टेड टू हाई, दिस इज अगेन रिवर्स बायस। यहाँ पे दोबारा P is connected to low, N is connected to high, this is again reverse bias. यहाँ पे P is connected to high, N is connected to low, this is forward bias, right? So this is forward bias. इसका करेक्ट ऑप्शन यही होना चाहिए, राइट, जो भी इसके हिसाब से ऑप्शन बैठ रहा हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आप लास्ट वीडियो में डायोड, बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि जब भी हमें बायसिंग चेक करनी हो, अगर हमें कभी भी सर्किट में रेजिस्टेंस चेक करना हो, कि यहाँ पे द वेरी फर्स्ट वर्क इज ऑफ बायसिंग। जब तक आप बायसिंग चेक नहीं कर पाएंगे, और बायसिंग के रूल्स क्या है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, करंट क्यों इनफाइनाइट हो जाता है, रिवर्स सॉरी हाँ रेजिस्टेंस रिवर्स बायस में इनफाइनाइट क्यों हो जाती है। तो ये सिंपल एक तरीका आपको याद रखना है कि सपोज यहाँ पे एक बात बता देते हैं, लेट्स से सर्किट इज फॉरवर्ड बायस, राइट। जो डायोड है उस केस में हम डायोड को किससे रिप्लेस करते हैं, अगर हमारा सर्किट किससे कनेक्ट फॉरवर्ड बायस, तो डायोड को हम रिप्लेस करते हैं बाय प्लेन वायर। डायोड को किससे रिप्लेस करेंगे, प्लेन वायर से। लेकिन अगर हमारा रिवर्स बायस है, हम क्या करते हैं, डायोड को में रेजिस्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस वो हो जाती है हमारी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का मतलब उसको ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट कर दो, ओपन सर्किट, राइट। सो उसको किस चीज से रिप्रेजेंट कर दें हम, ओपन सर्किट से। तो अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें जो हमारे पास है, कि यही लॉजिक हम लगाएंगे यहाँ पे, कि अगर हमारे पास डायोड ओपन सर्किट सॉरी फॉर रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस को हटा दो डायोड को और ओपन सर्किट कर दो, लाइक वहां से कोई भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि हम मानते हैं रेजिस्टेंस वहां से इन्फिनिट हो जाए, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, अगर हमसे क्या पूछा है, द सर्किट हैज टू आइडियल डायोड्स, आइडियल डायोड्स वी नो, नॉन आइडियल कि डायोड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, सिलिकॉन के बने हैं, किस चीज के बने, दैट इज आइडियल। और हमारे सिलेबस में आइडियल डायोड्स ही है, डायोड D1 एंड डायोड D2, दे आर कनेक्टेड, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1, ये मेरे पास R1 है, यहां से मुझे निकालना है करंट। देखिए पहले मैं चेक करूंगा बायसिंग, ये वाला है N, ये वाला है हाई, इसको हम जानते हैं ये हमारा होता है बैटरी का पॉजिटिव या तो नेगेटिव। N इज कनेक्टेड टू सॉरी हाई और P इज कनेक्टेड टू लो, तो ये D1 क्या हो गया हमारा, D1 इज RB रिवर्स बायस, और D2 इज फॉरवर्ड बायस, D2 इज फॉरवर्ड बायस। अब मैं अगर इसका इफेक्टिव सर्किट बना दूं, इफेक्टिव सर्किट कैसा बनेगा ये देख लीजिए, इक्विवेलेंट सर्किट जिसको आप पढ़ेंगे, ये ओपन, यहां से मुझे कोई मतलब नहीं, यहां से तो कोई करंट, इसको प्लेन वायर से रिप्लेस कर दीजिए इस वाले को, क्योंकि ये हमारा फॉरवर्ड बायस है, इसको रिप्लेस कर दीजिए प्लेन वायर से। यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस है, राइट। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल, इसको तो हटा दो, ये तो शॉर्ट सर्किट ही कर देगा, इसको तो हटा देंगे, इसका कोई रोल ही नहीं बचा उधर। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ से करंट कितना जाएगा, सो करंट इज इक्वल आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। वी गिवन है 10, आर कितना गिवन है टोटल 2 plus 2, they are connected in series not parallel, so that will be 2 plus 2, that is 4, तो ये आ जाएगा हमारा 2.5 एम्पियर। सो 2.5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। सो दीज आर द क्वेश्चंस जिसमें हमें डायोड के लॉजिक वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो, जस्ट टू मेक द वीडियो शॉर्ट, नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड, वी हैव ऑल द क्वेश्चंस ओवर हियर, जैसे ये हमने अभी डिस्कस किया, उसके बाद वी डू हैव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू IB इज वेरी सिंपल है, वी नीड टू चेक अगर मुझे ये निकालना है, तो ये तो डायरेक्टली हमारा आर भी हो गया, और मुझे करंट निकालना आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। वी कौन सा लेंगे, दैट इज एक्चुअली व्हाट वी टेक एज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये सारे क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड आई विल बी कमिंग अप विद दी व्हाट वी कॉल एज द लॉजिक गेट्स। हमारे पास लॉजिक गेट्स के कुछ क्वेश्चंस है, जस्ट दे आर बीइंग टाइप्ड, एंड आई विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।